عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات گرومندر سبیل والی مسجد میں نماز عید ادا کر دی گئی۔ ایف پی ایریا ٹی گراؤنڈ میں مفتی منیب الرحمان اور ناظم آباد عیدگاہ میں مفتی تقی عثمانی نے نماز پڑھائی۔ پولو گراؤنڈ میں گورنر کامران ٹیسوری، میئر کراچی مرتضی وہاب اور سابق میئر وسیم اختر سمیت عمان اور اماراتی کونسل جنرل نے نماز ادا کی۔ ملک کی ترقی، خوشحالی اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں۔ نماز کے بعد شہریوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارک دی۔ سٹی 21 کی جانب سے اہلیان کراچی کو عید کی مبارکباد۔ فیڈرل بی ایریا ٹی گراؤنڈ میں بھی نماز عید الفطر کی نماز میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امامت کے فرائض مفتی منیب الرحمان نے ادا کیے۔ کہا مظلوم فلسطینیوں کو یاد رکھنا چاہیے، مظلوموں کی امداد کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ ایریا کے ٹی گراؤنڈ میں ہزاروں شہریوں نے نماز عید ادا کی۔ امامت کے فرائض مفتی منیب الرحمان نے ادا کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی منیب الرحمان نے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ کہا ہمیں اس عید پر ایک بہتر قوم بننے کا عہد کرنا چاہیے اور خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ مفتی منیب الرحمان نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ اپنی اپنی ذاتی حیثیت کے مطابق مظلوموں کی مدد کے لیے سامنے آئیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی اور جائے امان، جائے پناہ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طبقات پر 7 کیٹیگری کے لوگوں پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ عیدگاہ ناظم آباد میں عید الفطر کی نماز کی امامت کے فرائض مفتی تقی عثمانی نے ادا کیے۔ کہا فلسطینی عوام پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلم ریاستیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ فلسطینی بھائیوں کی مدد ہر صورت کرنی ہوگی۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ ناظم آباد میں عید الفطر کی نماز میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امامت کے فرائض مفتی تقی عثمانی نے ادا کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے خطاب میں مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ عید الفطر خوشی کا تہوار ہے، لیکن ہمارے دل فلسطینیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور عالم اسلام خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ فلسطینی بھائیوں کی ہر صورت مدد کرنی ہی ہوگی۔ فلسطینی بھائیوں بہنوں اور بچوں کے لیے امداد پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر سارے مسلمان پاکستانی اپنی آمدنی کا تھوڑا سا حصہ بھی اس کام کے لیے صرف کر دیں تو کم از کم ان کو وہ بھوکے نہ مریں۔ شہریوں نے بھی عید کے موقع پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ نماز عید کے بعد ملک و قوم کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی نے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ بالکل، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی ہے اور فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ سندھ کامران خان ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے عید الفطر کی نماز پولو گراؤنڈ میں ادا کی اور تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گورنر سندھ نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ کہا عید الفطر ملک کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائے۔ ہمارے دوست ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ دوسرے بھی ممالک کے سفارتکاروں نے، بزنس مینوں نے، میئر کراچی صاحب نے، مرتضی وہاب بھائی نے بھی نماز فطر ادا کی، اور جو دعا کی گئی اس دعا میں یہی کہا گیا
कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान के कर्ज़ों से हमारी निजात दिलाए ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए। गवर्नर सिंध ने कराची के स्ट्रीट क्राइम पर भी बात की। कहा, जब तक कराची में अमन कायम नहीं होगा, सरमायाकारी नहीं होगी। वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान की तलाश है। तमाम लवाहिकीन को यकीन दहानी कराई के मुल्जिमान को सजा देंगे। जिस तरह मैं हर जगह कह रहा हूं कि SIFC पाकिस्तान का फ्यूचर है और अब वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं, लेकिन कराची का और सिंध का लॉ एंड ऑर्डर SIFC अपने ज़िम्मे ले ले। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मैं इस बात का मुझे अदराक है कि पिछले 6, 7, 8 माह में सिचुएशन ख़राब हुई है, जिसकी वजह से वही रैंकिंग हमारी जो 5 से बेहतर होकर 132 पे आ गई थी, वो गालिबन 82 या 83 हो गई है। मैं समझता हूँ हमें चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने फ़लस्तीन में इसराइली जाहिरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। आपको बताएं, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके ईद मुबारक दी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इस टेलीफोनिक रब्ते के अंदर सदर मुमलिकत जरदारी ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इससे कबल सदर आसिफ जरदारी ने नवाबशाह में ईद की नमाज अदा की। उसके बाद वो मस्जिद में मौजूद लोगों से ईद मिले और नेक तमन्नाओं और खुशी का इजहार किया। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर के पहले रोज़ बच्चों और बच्चियों ने अपने वालिदैन से ईदी लेकर तफरीगाहों का रुख कर लिया। कोरंगी नंबर 6 में बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज होने लगे। अपडेट करेंगे मोहम्मद हमाद। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का पहला रोज़ है और पहले रोज़ ईद उल फितर में जहाँ बड़े वहीं बच्चे भी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ईद जो है वो बच्चों की ही यकीनन होती है, क्योंकि इनको मौका मिलता है हर तरह से एंजॉय करने का। ये जो हमने देखा है यहाँ पर हर उम्र के जो है यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, जिन्होंने सुबह उठने के साथ पहले ईद की नमाज अदा की। इनमें जो लड़के शामिल हैं और बच्चे शामिल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ईद के पहले रोज़ अपने वालिदैन से जो है वो ईदी लेने के बाद यहाँ पर आए हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ बच्चों से और इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, कैसा लग रहा है झूला झूल के? आज ईद का मौका है, तो ईद उठते ही साथ आपने क्या किया था? सबसे पहले नहाया, फिर ईद की नमाज पढ़ने गया, आने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद आके ईदी ली, ईदी आने के बाद यहाँ पर आ गए। कौन कौन है आपके साथ आपके अलावा? मेरी 2 बहनें बस। 2 बहनें हैं, तो कितना मजा आ रहा है? बहुत। तो बहनों को ईदी दी आपने या बहनों से ईदी ली? तो कौन कौन से झूले झूले, कितना मजा आ रहा है झूले झूलते हुए? सारे झूले अभी तक। कौन कौन से? ये गोल वाला, ये जंपिंग, मेरी राइड। चले इनसे, इनकी बहन से भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि झूला झूल रही है, कितना मजा आ रहा है? किसके साथ? वालिद के साथ आई है, अम्मी के साथ आई है? बाबा के साथ। तो बाबा से ईदी कितनी ली आपने? 100 रुपये। 100 रुपये में सारे झूले झूलेंगे? जी। झूला झूलने के बाद क्या करेंगे? घर जाएंगे। तो मजा आ रहा है झूला झूलने में? जी आ रहा है। आज तो पहला दिन है, तो दूसरे और तीसरे दिन का क्या प्रोग्राम बना है? दूसरे तीसरे दिन क्या करेंगे? नानी के घर या हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद में कौन है? फूफा। देखिए काफ़ी बच्चे जो यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं, अपने जो है वो अम्मी से और अब्बू से जो है यहाँ पर ईदी लेकर यहाँ पर आए हैं और काफ़ी जो है यहाँ पर झूले झूल रहे हैं। यहाँ पर कश्ती वाला झूला है, गोल वाला झूला है, साथ ही साथ जो है काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे हैं। कोरंगी का ये इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो है हर साल ईद पर झूले लगाए जाते हैं ताकि बच्चे जो है यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें, क्योंकि यकीनन ये ईद जो है वो बच्चों की ही होती है। बच्चे जो है इस ईद को जो है खूब तरीके से एंजॉय करते हैं और हमारे दरमियान जो ये बच्चे मौजूद हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो जनाब, ईद उल फितर पर ईदी ना मिले तो ईद की खुशियाँ नहीं लगती है ना? वैसे सही बात है, घरों में बच्चों को ईदी देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बच्चों के चेहरे ईदी मिलने पर खुशी से खिल उठे। आयमा खान से मज़ीद जानते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए छोटी ईद की खुशियाँ जो हैं वो बड़ी हो जाती है बच्चों के लिए जब उनको जो है वो ईदी मिलना शुरू हो जाती है। और इस वक्त जो है वो घरों में ईदी मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और बच्चों के चेहरे जो है वो ईदी मिलने से खुशी से जो है वो खिल उठे हैं। बच्चे जो है वो ईद का इंतज़ार करते हैं बिलखसूस, क्योंकि ईदी मिलती है छोटी ईद में। यही वजह है कि छोटे बच्चों को जो है वो रोज़ों के बाद, रमज़ान के बाद जो है वो ईद का खासा इंतज़ार रहता है। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताओ, कहाँ ईदी खर्च करोगी? मैं झूले लूँगी और क्या कहते हैं चीज़ लूँगी। अभी तक कितनी ईदी जमा कर ली? काफ़ी सारी। किस किस ने दी है अभी तक? मामा ने, पापा ने और दादू ने। आप मुझे बताइएगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? रमज़ान के बाद ये ईद का सिलसिला शुरू होता है और आज पहला रोज़ है, बच्चों को ईदी बांट रहे हैं, तो इस सवाल से आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? ज़ाहिर है ये ईद तो ये त्यौहार ही बच्चों का है और मीठी ईद है, खुशियों का त्यौहार है, तो अच्छा लगता है छोटे बच्चों को ईद में इनके चेहरे की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ में हम सब साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, बच्चे जो हैं वो खासे खुश नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम जो है वो ईदी तो मिल गई है, अब ईदी लेने के बाद अब हम जो है वो बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और जो है वो बाहर जाके जो है वो झूले भी लेंगे। इसके अलावा जो है वो चीज़ें वगैरह खाएंगे और साथ ही साथ जो है वो बच्चे जो है वो इस ईद से खासे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, दारुल सुकून की 55 साला रिवायत बरकरार। इस साल भी यतीम बच्चों में ईद की खुशियां बांटने के लिए मेला सजाया गया। मैनेजर बोनी कहते हैं कि इन बच्चों के साथ ईद मनाने में अपनापन महसूस होता है। मज़ीद बताएंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में ईद जो है वो भरपूर जोशो खरोश से मनाई जा रही है। फ्लाई दारू की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी यतीम बच्चों में ईद की खुशियाँ बांटने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं दारुल सुकून के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है ईद उल फितर की खुशियाँ यतीम बच्चों के हमरा मनाई जा रही हैं। इस वक्त मैनेजर कोऑपरेटिव बोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे बताइएगा, कितने साल से दारुल सुकून ये सिलसिला चला रहा है और इस ईद के मौके पर क्या पैगाम देंगे और इन बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे? ठीक है, दारुल सुकून 17 फरवरी 1969 में शुरू हुआ था। इसको अभी 55 साल हो गए हैं इस इदारे को वजूद में आए हुए। दारुल सुकून अमन और मोहब्बत का गहवारा है, ये हाउस ऑफ पीस एंड लव। ये सारे बच्चे यहाँ पर जो हैं इस इदारे में, ये सारे स्पेशल बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत लविंग बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं। और इनके साथ ईद मनाने में मज़ा यूँ आता है कि हम सुबह से यहाँ आते हैं, रात तक यहाँ होते हैं। एक मेला जैसे समा होता है। लोग सुबह 7:30-8 बजे से शुरू होते हैं आने के लिए यहाँ। इनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, इनके लिए खाना लाते हैं, इनके लिए मिठाइयाँ लाते हैं, इनके लिए कपड़े लाते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद है कि कोई बाहर से आए, इनको मिले और इनके साथ वक्त गुजारें। इस वक्त जो है वो मैनेजर कोऑपरेटर भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है दारुल सुकून की जानिब से यतीम बच्चों में खुशियाँ बांटने का सिलसिला जारी है, जो कि पिछले 55 साल से जायद से यतीम बच्चों के अंदर खुशियाँ बांटता चला आ रहा है। सुबह 7 बजे से ईद की नमाज के बाद से ये सिलसिला शुरू होता है और दिन भर जो है वो लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है। कोई गिफ्ट तोहफ़े लेके आता है तो कोई बच्चों के लिए मिठाई लेके आती है। तमाम बच्चे स्पेशल बच्चे हैं जो इनके लिए ईद और तवाइफ की चीज़ें लाई जाती हैं। जी, ईद की नमाज की अदायगी के बाद शहरी नाश्ता करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। पान मंडी में हलवा पूरी के लिए कतारें लग गईं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ईद के पहले रोज शहरियों ने गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए होटलों का रुख कर लिया। पान मंडी में मशहूर नवाब हलवा पूरी पर सुबह सवेरे से लंबी कतारें लग गईं। शहरी मजेदार हलवा पूरी से खूब लुत्फ अंदोज हुए। कहा, ईद के मौके पर घर में खवातीन मसरूफ होती हैं, इसलिए बाहर नाश्ता करने का प्रोग्राम बनाया। ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है, तो लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं। घर में औरतों ने मेहंदी वगैरह लगाई हुई होती है, फिर अपने नए कपड़े पहने होते हैं, अपनी तैयारियों में होती हैं। नमाज पढ़ के फिर सबसे पहले बच्चे कहते हैं कि हलवा पूरी लेके आएं। बास शहरियों ने बाहर नाश्ता करने की बड़ी वजह शहर में गैस बहरान को करार दिया। अभी नमाज पढ़ के आए तो घर पे वैसे भी गैस नहीं आती, तो घर वालों के हलवा पूरी लेके चले जाए इससे चल। शहरियों का कहना था कि ईद की खुशियों को दोबाला करने और घर वालों की सहूलत के लिए बाहर नाश्ता करने आए हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ईद उल फितर की नमाज के बाद शहरियों ने नाश्ते पॉइंट पर रुख कर लिया। शाह फैसल कॉलोनी में हलवा पूरी की दुकान पर शहरियों की कतारें लग गईं। बिल्कुल, और शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक में हलवा पूरी नहीं मिल सकी, आज हलवा पूरी से खूब लुत्फ अंदोज होंगे। सैयद नुमान गुल मजीद बताएंगे।
عید الفطر کی نماز کے بعد شہری جو ہے وہ اب ناشتے کے رخ کرتے ہیں. مختلف جو پوائنٹس ہیں وہاں سے حلوہ پوری, کچوریاں و دیگر جو ناشتے کا سامان ہے وہ لیا جاتا ہے. اس وقت میں شاہ فصل کالونی نمبر 3 پر موجود ہوں, جہاں پر بھی شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ حلوہ پوری لینے آئے ہوئے ہیں. میرے کیمرہ مین فرحان احمد آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت سبحان بیکری پر میں موجود ہوں, جہاں پر بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ حلوہ پوری لینے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. سر ہمیں بتائیے گا کیا کرنے آئے ہیں آپ اس وقت, اور عید کے موقع پر کیا پیغام دیں گے, ناشتہ لینے آئے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں یہاں پہ نماز کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ آیا ہوں حلوہ پوری لینے کے لیے. میرا بیٹا بہت شوق سے کھاتا ہے حلوہ پوری, اس لیے میں نے کہا چلو پورے رمضان تو حلوہ پوری کھایا ہی نہیں ہے, اب عید کے دن بچے کو حلوہ پوری کھلاؤں, اور اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں 3 نمبر سے. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیے گا عید کے موقع پر کیا پیغام دیں گے آپ لوگوں کو, اور فیملیز رشتہ داروں, کیا رشتہ دار بھی گھر پر آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی حلوہ پوری لے رہے ہیں؟ جی رشتہ دار بھی ابھی آنے والے ہیں گھر میں, اور میں عید کے موقع پہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں بھائی نفرتیں ختم کرو, محبت عداوت پیار محبت سے رہو, کیونکہ زندگی چند دن کی ہے, کب نہیں پتہ کس کی باری آ جائے چلے جائے, اس لیے دلوں سے نفرت ختم کرے اور اپنے دلوں میں محبت اور بھائی چارگی پیدا کرے. یقینی طور پر اس وقت شہری جو ہیں وہ اب حلوہ پوری کے جو مختلف پوائنٹس ہیں وہاں کا رخ کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں اس وقت بھی شاہ فصل کالونی میں مٹھائی کی دکان پر جو حلوہ پوری یہاں پر لگائی جاتی ہے وہاں پر شہری بڑی تعداد میں قطار میں موجود ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. کراچی میں عید جو ہے وہ شایان شان طریقے سے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اور دوسری جانب قونصل جنرل UAE بخیت عتیق الرومیتی نے قونصلیٹ میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا ہے. عربی ثقافت کے مطابق عید منائی, سلمان سلیم کی رپورٹ دیکھیے. عید آئی ڈھیروں خوشیاں لائی. قونصل جنرل UAE بخیت عتیق الرومیتی نے بھی اہل خانہ اور دوستوں کے ہمراہ عید کی خوشیاں سمیٹی. قونصل جنرل UAE نے بچوں کو عیدی بھی دی. بخیت عتیق الرومیتی نے پاکستانی بہن بھائیوں کو عید کی مبارکباد پیش کی. کہا پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ عید منانے میں بے حد خوشی ہوتی ہے. سب سے پہلے میں اپنا بہن بھائیوں کو پاکستانیوں کو عید الفطر کا بہت بہت مبارک ہے, اور عید الفطر خوشی کا دن ہے اپنا امہ اسلامیہ کے لیے, اور سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگ اپنا ٹریڈیشنل فوڈ جیسے اماراتی جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے سویٹ ہے ان کو سامنے لے آ کے, اور محسوس نہیں ہو رہا جیسا ہم لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے, جیسے اپنا ملک کے اندر ہی. عربی ثقافت کے تحت مہمانوں کو اود کی دھنی بھی دی گئی, جبکہ عربی قہوہ بھی پیش کیا گیا. کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ سلمان سلیم, سٹی 21. نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستانوں کا رخ کیا تو اس کے اعتراض شدید ٹریفک جام ہو گیا. احوال بتائیں گے رضوان احمد. جی رضوان آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, شہر قائد کے باسی جو ہے وہ عید چھوٹی ہو یا بڑی اپنے مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, اور اس عید کے پہلے روز بھی یہی صورتحال دیکھنے میں مل رہی ہے شہر کے قبرستانوں کے اطراف, جہاں اس وقت اگر شہر میں کہا جائے کہ ٹریفک سڑکوں پہ رواں دواں ہے تو جو قبرستان ہیں ان کے اطراف جو ہے وہ ٹریفک جام ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد نے رخ کیا ہے قبرستانوں کا, اپنے پیاروں کا, اپنے مرحومین کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے, ان پر پھولوں کی پتیاں نچاور کرنے کے حوالے سے. عیسیٰ نگری قبرستان سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, یہاں پہ بھی جو ہے وہ گہما گہمی ایسی دکھائی دیتی ہے, پھولوں کی پتیاں جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ قبرستان کا رخ کر رہے ہیں تاکہ اپنے مرحومین کی قبروں پر فاتحہ خوانی کر سکیں, ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکیں. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیے گا سر, قبرستان آج عید کے روز کس لیے ہے؟ یہ اپنے مرحومین کے لیے ہم لوگ آئے تھے فاتحہ خوانی کے لیے, تو اندر گئے ہوئے تھے, فاتحہ خوانی وغیرہ کی, ان کو یاد کیا, ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی. یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا انتظامات اندر آپ کو دیکھنے میں ملے صفائی ستھرائی کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے؟ صفائی ستھرائی کی تو اللہ سے بہتر ہے, لیکن سیکیورٹی کے لحاظ سے تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ بائک والے بھی اندر جا رہے ہیں, ٹریفک اندر جام ہو رہا ہے, چلنے والوں کو دشواری ہے. اس چیز پہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ادھر سیکیورٹی کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے دیتے. مذہبی تہوار کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوٹ مار کی وارداتیں ہیں اور چوری یا خاص طور پہ جیب کترے سرگرم ہوتے ہیں, اس قسم کے واقعات آپ کو دکھائی دیے قبرستان؟ اس وقت قبرستان میں تو نہیں دکھائی دی, لیکن پورا رمضان لوگوں کی حالت بگڑی رہی ہے, جو گورنمنٹ نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. اس وقت جو شہر کے حالات رہے لوگوں نے مطلب جو بتایا, دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, بہت زیادہ حالات اس رمضان میں بہت زیادہ سننے میں آیا. بالکل کہا یہ جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے کہ
जो कब्रिस्तान हैं उनमें सफाई सुथराई के इंतजाम से तो वो मुतमईन हैं, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, जो कि सवालिया निशान है इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर। जी, ईद की नमाज के बाद नौजवानों ने चाय के होटलों का रुख कर लिया। कहते हैं रमज़ान तो अच्छे गुजर गए, अब होटल पर दोस्तों के साथ बैठकर ईद गुजारने का प्लान बना रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, आज ईद का पहला रोज़, नमाज के बाद जो है अब बच्चों ने, जहाँ हमने देखा कि ईदी अपनी जमा करते हैं, वहीं यंगस्टर जो नौजवान हैं वो भी ईद की खुशियाँ अपने दोस्तों के साथ बनाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जहाँ रमज़ान की इबादत थी उसके बाद अब होटलों का रुख हो चुका है। सुबह का नाश्ता करने के बाद अब दोस्तों से महफिल लगी हुई है यहाँ। ज़रा इनसे जानते हैं कि किस तरीके की इनकी तैयारियाँ थी, कैसा गया इनका रमज़ान। ईद का पहला रोज़, नमाज़ पढ़ी, अब क्या दोस्तों के साथ ईद मना रहे हो? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बस रमज़ान थे, अच्छा अल्लाह बाबरकत महीना था, तैयारियाँ करी, दोस्तों यारों के साथ गए, शॉपिंग वगैरह करी, उसके बाद फिर नमाज तरावी वगैरह, फिर ये ईद का दिन आता है, दोस्तों यारों के साथ उठते बैठते हैं, बस यही चल रहे हैं। होटल ईदी मिली आज? क्या चाय के होटल पे या अपनी जेब से पी रहे हो? नहीं, अपनी जेब से पी रहे, अब तो बड़े हो गए, अब कहाँ ईदी मिलती है। बस आप बताएं, आपका कैसा दोस्तों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये रमज़ान का महीना था, इस पे हम खफा है कि चला गया। बस ये बहुत अच्छा महीना था, बाबरकत महीना था, हम लोगों ने खूब तरावियाँ, खूब इबादत की। अब ये ईद का दिन है, माशाल्लाह खुशी का दिन है, तो हम सब मुसलमानों को बनाना चाहिए। इस वजह से हम सारे यार दोस्त बस बैठे हुए, ईद की नमाज़ पढ़ी। अब और तो कुछ गपशप चल रही है आपस में, क्या बातें? गपशप बस यही के तस्वीरें, और तो कुछ है नहीं। हम टिकटॉक बनाना है अभी, क्या प्लान क्या है शाम का? क्या अभी तो इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन का हम लोगों ने फार्म का सीन बनाया कि इंशाल्लाह फार्म जाएंगे, ईद एंजॉय करनी है, बस यही तो ईद होती है हमारी। उसके बाद कॉलेज है, बस वही। जैसे ये नौजवान आप बैठे हैं यहाँ, प्लानिंग कर रहे हैं कि ईद के तीसरे दिन जो है वो किस तरीके से मनाने हैं उनको, तो इसके ऊपर ये तमाम सिलसिला इनका चल रहा है। और भी लोग बैठे हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। ज़रा नाश्ते चल रहे हैं साथ साथ, ज़रा ईद की नमाज के बाद आज बाहर निकल गए हैं और नाश्ते की टेबल सजी हुई है, ज़रा चाय वाय चल रही है, उनसे जानते हैं। भाई कैसी रही ईद की नमाज हो गई, नाश्ता वाश्ता करने होटल आ गए हो, कैसा चल रहा है? ईद मुबारक हो आपको। नाश्ता नहीं किया था ना सुबह का, हाँ दोस्तों के साथ या मिस कर रहे थे होटल का चाय और ये जो रमज़ान के अंदर मिला नहीं ना। बाकी क्रिकेट खेली, रोजे रखे माशाल्लाह पूरे, और दर्जी हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह दर्जी का काम किया पूरा महीना। आप बताएं क्या प्लानिंग क्या है आगे की? क्या प्लानिंग है अभी? ईद कैसे गुजारनी? सो के गुजारनी है, सिर्फ सो के गुजारोगे यहाँ दोस्त? ईद का मज़ा यही है। सो के गुजारते हैं। अच्छा जी, ये लोगों का बस होता है कि किसी तरीके से ईद मना लें, ईद गुजार लें, ईद की दोस्तों के साथ गुजरते हैं। इसी तरह नौजवान जो हैं तमाम अपने होटल्स पे बैठे हुए, प्लानिंग भी चल रही है कि आगे ईद के 3 दिन कैसे गुजारने हैं। कुछ सो के गुजारेंगे, कुछ दोस्तों के साथ फार्म हाउस पे जाके गुजारेंगे। तो ईद का नमाज के बाद से अब होटलों की तरफ जो है नौजवान का रुख है, उसके बाद अब शाम चलती रहेगी और इस तरह के डिफरेंट इनके प्लान्स बनते रहेंगे और यही यहाँ फिर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ईद की नमाज के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने बेकरियों का रुख कर लिया। कोई मिक्स मिठाई तो कोई चॉकलेट केक खरीदने में मसरूफ़ है, क्योंकि ईद है तो चीटिंग डे तो बनता ही है। रिपोर्ट कर रहे हैं जवाद आसिफ। मिठाई हो या केक, सब हैं ईद की सौगात। ईद की नमाज के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने बेकरियों का रुख कर लिया। कोई मिक्स मिठाई तो कोई चॉकलेट केक खरीदने में मसरूफ है। शहरी कहते हैं कि ईद का मौका है, फैमिली के साथ केक काटकर खुशियां बांटेंगे। फैमिली वगैरह के लिए मिठाई वगैरह, केक वगैरह लेके जाएंगे, थोड़ी ईद की खुशियाँ जो सेलिब्रेट करेंगे, बस यही। और इसके अलावा और क्या होता है, बस फैमिली वगैरह के लिए। बेकरियों पर शहरियों की तादाद जोक दर जोक बढ़ती रहेगी। कराची के शहरियों का पैगाम है कि ईद के मौके पर तमाम नफरतें और रंजिशों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया जाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 21। फलाही इदारों के रजाकारों ने अपनी ईद की खुशियाँ कुर्बान कर दी। कीमती जानों की हिफाजत के लिए आज भी सड़कों पर मौजूद हैं। मजीद बताएंगे शाहजेब हुसैन। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का मौका है और ऐसे में अगर शहर में कोई हादसा रुन्मा हो जाए तो उनकी खिदमत के लिए, उनको तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए, उनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने के लिए जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मुतहर्रिक होते हैं। वो ईद की खुशियों के मौके पर भी अपने घरों से दूर शहरियों की खिदमत सरअंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त लियाकताबाद में एक छिपा के रज़ाकार के साथ मौजूद हूँ। पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक, और ये बताएगा कि आप लोग शहरियों की खिदमत के लिए अपनी ईद की खुशियाँ कुर्बान करते हैं। शहर में हंगामी सूरत हाल हो जाए तो उसमें अपनी खिदमत सरअंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। शहरियों को क्या कहना चाहेंगे, शहरियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखा जाता है ईद के मौके पर जो मुंचले बाइक सवार जो होते हैं वो
ट्रैफिक हादसात के जो है सबसे ज़्यादा सबब बनते हैं? मोटर साइकिल वाले हजरात जो है ये जल्दबाजी में जो बहुत सारे हादसा हो जाते हैं। इस हादसे से बचने के लिए सब सब्र के साथ सुकून के साथ अपनी सफ़र करें। ये जल्दबाजी में किसी के बच्चे किसी के वालिद हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और घर वाले परेशान होते हैं थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से इतने बड़े हादसा हो जाता है। इससे अगर आप लोग थोड़ा सा सब्र के साथ सुकून के साथ सफ़र करें तो बहुत सारे हादसा से बच सकते हैं। अच्छा, ईद के मौके पर शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहरियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने ईद मनाई मगर अपने साथ गरीबों का भी ख्याल करें। जो ईद नहीं मना सकते तो उसके हुकूक का भी ख्याल करें ताकि आपके ईद जो दोबारा हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये ईद के त्यौहार पे सबसे पहले तो आपको ईद उल फितर की मुबारकबाद, और साथ में ये बताएगा कि जो ये रज़ाकार होते हैं रेस्क्यू इदारों के, वो ईद की खुशियाँ कुर्बान करके वो शहरियों की खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। ये कैसा अमल है? बहुत अच्छा, बहुत कुर्बानी देते हैं लोग, बहुत कुर्बानी देते हैं, बहुत अच्छा अमल है ये और सबको ही करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए इनके साथ ताकि इनका भी काम आसान हो। आज बिल्कुल ईद के मौके पर इनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए ताकि इनकी जो खुशियाँ इनके घर पर मौजूद हैं वो अपने सब प्यारों से जो है दूर रहकर जब शहरियों की हिफाजत कर रहे होते हैं, उनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचा रहे होते हैं, तो इनका भी शहरियों को चाहिए कि इनकी खिदमत सर अंजाम दें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वकला बरादरी भी ईद की खुशियाँ अपने अजीज़ और क़रीब के साथ मना रही है। एडवोकेट एजाज उमरू कहते हैं हमें ईद पर अपने शुहदा को याद रखना चाहिए। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल फितर आज बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है। लोग अपने अजीज़ व अकारिब से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और ईदी भी जो है वो तकसीम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो वकला बरादरी है उनकी क्या मसरूफियात होती हैं। ईद के पहले दिन उनकी फील्ड बड़ी पेचीदा है। ईद के दिन वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट एजाज हुसैन सुमरा साहब। सुमरा साहब, बताएगा किस तरीके से ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ईद का दिन है, सबसे पहले तो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को याद करें जो शहीद हुए हैं, क्योंकि मुसलमान के लिए ईद हो, शादी हो या जहाद हो, ये हम खुशी से त्यौहार मनाते हैं क्योंकि शहादत हमारे लिए बायस फ़ख्र है, गाज़ी बनना भी बायस फ़ख्र है। लेकिन ईद के दिन अपनों से, अहले मोहल्ला से, सबसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम सबसे ईद मिलें। सुबह सुबह तो पहले हम गए कि कब्रिस्तानों में और जहाँ जहाँ हमने दरख्त लगाए, बस स्टॉपों पे सवेरे सवेरे उनको पानी दिया। पहली ड्यूटी हमने ये अदा की। फिर मेरे ये बड़े भाई हैं अहमद बग सुमरो साहब, वो मेरे भांजे हैं, ये अहले मोहल्ला से पड़ोसी हैं और कुछ लोग यहाँ ईद मिलने आए। फिर अपना दफ्तर खोला। हम भी इंसान हैं, ज़ाहिर वकील तो हैं, क्योंकि दूसरों की परेशानियाँ हम ख़रीद करते हैं और दूसरों की परेशानियों के लिए हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इंसाफ दिलवा के दें। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि ईद के दिन ज़रूरी है कि जो अपने शोहदा हैं उनको भी याद रखा जाए, जबकि इनका ये भी कहना था कि वकील हैं जो है साल पूरा साल जो है वो अदालतों में इंसाफ के लिए जो है वो ये सरकर्दा रहते हैं, लेकिन ईद के दिन ये अपने जिनका ऑफिस भी है और आज भी अपने ऑफिस में ही मौजूद हैं, जहाँ पर इनके अहले मोहल्ला, इनके अजीज़ व अकारिब, इनके जो रिश्तेदार है वो यहाँ पर आते हैं, गले मिलते हैं और ईद की खुशियों को आपस में जो है वो बांटते हैं। जी, ईद उल फितर के दिन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। जिन्ना अस्पताल के शोबे हादसात में अमला इस वक्त मरीजों की देखभाल कर रहा है। मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त जिन्ना अस्पताल के शोबे हादसात के बाहर मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं जिन्ना अस्पताल की एमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये शोबे हादसात है जिन्ना अस्पताल का। यहाँ पर आज ईद उल फितर का दिन है और लेकिन ईद उल फितर के दिन भी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग का स्टाफ है, वो आज अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। और शहर भर में जो हादसात रोनुमा होते हैं और हो रहे हैं, जिसमें खुसूसन जो नौजवान तेज़ बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेज़ बाइक चलाते हैं, वो उनके एक्सीडेंट और दीगर जो अमराज के जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनको जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है और उसके बाद अगर कोई मरीज़ उसकी हालत सीरियस है
तो उसको जो है वो वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। अमला मौजूद है, उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है और तमाम स्टाफ आज ईद उल फितर के दिन भी अवामी खदमत है उसको बरूएकार लेकर आ रहा है और तमाम जो यहाँ आने वाले शोबा हादसात में मरीज़ हैं उनकी वो मुकम्मल तौर पर तीमारदारी कर रहा है। ये एक बड़ी मस्बत बात है जो यहाँ जिना अस्पताल के अमला इस वक्त मौजूद है और जो भी ज़ख्मी और दीगर जो मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं उनको फौरी तौर पर फर्स्ट एड के जो खिदमात सर अंजाम देने के में यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो मसरूफ़ अमल है। जी।